Good morning, everyone. Today we are going to continue our chapter 13 with exercise 13.6, where we are going to talk about the volume of cylinder, right? Volume of cuboid, yesterday we did, and today we will do the questions related to volume of cylinder. Can anybody tell what is the formula for volume of cylinder? Pi r square h. Yes. R square H, right? आपके पास cylinder ये, and we say that the volume is always equal to area multiply height, area of cross section. तो आपका ये area कौन सा है? सर्कल, और इस सर्कल का एरिया हो गया आपके पास पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट. सो द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है. Volume is always equal to area multiply height if your shape is symmetrical. ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक आपकी सेम शेप है, then we apply this formula that volume is equal to area multiply height, right? In case of cone, this formula does not hold. हाँ जी. मैम सरफेस एरिया जो होता है लेटरल सरफेस एरिया में ये भी होता है पेरीमीटर मल्टीप्लाई हाइट लेटरल सरफेस एरिया होता है. पेरीमीटर मल्टीप्लाई हाइट करके देखो. क्यूबॉइड में 2 into L plus B into H, और इसके केस में पेरीमीटर इज 2 पाई R into H, 2 पाई R H. बिल्कुल. Okay, so before we start this exercise of volume of cylinder, we are first taking the problem question number 7 and 9 of exercise 13.4 as is the question from your side. Yesterday also the question was started, but it was left in between. So of exercise 13.4, you are given that diameter of moon is 1/4 the diameter of earth, and we divided both the sides with 2. Diameter divided by 2 will be the radius. So radius of moon is equal to 1/4 the radius of earth, right? This result we are going to use in the question. Now we have to find out the ratio of what? We have to find out the ratio of their surface areas. Surface area means total surface area, और रेशियो की जब आपको बात बोली है तो क्वेश्चन में सबसे पहले वर्ड मून आया, तो मून का आप ऊपर लिखेंगे और अर्थ को आप नीचे लिखेंगे. डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 द diameter of earth. So we are finding out the Kamal. Okay, so surface area of moon, here we will talk about total surface area upon surface area of earth, right? Surface area of moon will be 4 pi r square is the formula for surface area of sphere, and here moon has the radius r m. ठीक है, 4 pi r square upon 4 pi. अर्थ की रेडियस है आपके पास r e square. Here 4 and 4 pi and pi they will get cancelled, and now we are going to use this that radius of moon is 1/4 radius of earth. So at the place of rm I am going to put 1/4 re and its square upon re square. ठीक है, स्क्वायर कर दो इसका. 1 square 1, 4 square 16, re square upon re square. ठीक है, आपका re square से re square cancel. Answer is 1/16, means the ratio is 1/16. Surface area of moon is 1/16th the surface area of earth. ठीक है, this was your question number 7. And now coming on question number 9 of exercise 13.4. Question number 9 is a right circular cylinder just encloses a sphere. एक cylinder है और ये एक sphere को enclose कर रहा है. Just encloses a sphere means the sphere is on the all four sides of the cylinder. Means ये sphere इसके अंदर नीचे भी टच कर रहा है, ऊपर भी टच कर रहा है, लेफ्ट में भी राइट में भी, हर जगह से ये स्फीयर इसको टच कर रहा है. एंड यू आर गिवन द रेडियस ऑफ
this to be r. स्फीयर की रेडियस आपको r गिवन है, इस स्फीयर की रेडियस है आपके पास r. In the first part we have to find out the surface area of sphere. Formula again we are going to apply 4 pi r square. Radius आपके पास आ रही है, so we will write r as it is. So your surface area of sphere will be 4 pi r square. And in the second part we have to find out the curved surface area of cylinder. हाँ जी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बोल दो, 2 पाई आर एच. ठीक है, और इसमें अब आपके पास r, तो जो इसकी रेडियस है, जो स्फीयर की रेडियस है, वही सिलेंडर की रेडियस है. सो 2 पाई r तो एज इट इज, बाकी है आपके पास h. नाउ व्हाट इज h? व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर? दैट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द स्फीयर. तो इसका डायमीटर आपके पास कितना है? दिस इज r, दिस इज r. रेडियस, हाइट की जगह आपने क्या लिखना है? 2r. डबल ऑफ रेडियस इज द हाइट ऑफ द cylinder. Now 2 into 2, 4 pi r square. So curved surface area of cylinder is also 4 pi r square, and surface area of sphere is also 4 pi r square. And then we have to find out the ratio of the areas obtained in part 1 and part 2. Part 1 में आपका area आया है 4 pi r square. We have to find its ratio with the area in part 2, that is also 4 pi r square. So 4 pi r square पूरा cancel, and you will get your ratio to be 1:1. Clear? Clear to everyone? थर्ड में रेशियो कैंसिल, मैम थर्ड में पूरे कैंसिल होंगे. Okay. Now coming on exercise 13.6, where we are saying that we are going to apply the formula volume of cylinder. मैम थर्ड में उसको सेम थे इसलिए कैंसिल किया. हाँ जी, हाँ जी. मैम थर्ड में सेम थे इसलिए कैंसिल किया. थर्ड में जो थर्ड पार्ट था उसके अंदर सेम डिजिट्स के लिए थे इसलिए कैंसिल किया ना. हाँ जी बिल्कुल, 4 से 4 कैंसिल बेटा, पाई से पाई, r स्क्वायर से r स्क्वायर. चलिए, what is the formula for volume of cylinder? You all said its formula is pi r square h. ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करके now we are going to do the complete the exercise. First question, the circumference of the base of a cylindrical vessel. Circumference cylindrical vessel, इसका base आपका है 132. Circumference है means what is this? Circumference का formula 2 pi r. So we have 2 pi r is equal to 132. ठीक है, यहाँ से आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं. And its height is given to you 25 centimeter. How many liters of water it can hold? How many liters of water means we have to find out the volume. ठीक है, निकालो यहाँ से रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करो. 132 डिवाइडेड बाय 2 पाई, और पाई की जगह पे भी आप क्या पुट कर देंगे? 22/7. 22 और 7 आपका चला गया ऊपर. ठीक है, बताइए रेडियस कितनी आई है? 21. 21? Yes, ma'am. Okay. 66 and 3 7s are 21. किस में था आपका? मीटर, सेंटीमीटर? This is in centimeters. ये आपका सेंटीमीटर सर्कमफेरेंस है. एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम. पुट द वैल्यूज. Radius is 21 and the height is 20. Value. And 34.65 liter. 34.65 liter. 34650 ये तो आ जाएगा मीटर, सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब से आपको लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000. 34650 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर्स, और ये हो जाएगा आपका 34.650 लीटर्स. Simran, do you have to say something? सिमरन बोलो बेटा.
Yes. Coming to the next question. मैम ये क्वेश्चन रिपीट करा दो। यही वाला? हाँ जी, सुन लो। Yes, ma'am. You are given circumference. Circumference is 132 given. ठीक है, और circumference सिलेंडर के केस में circumference सर्कल होता है नीचे, तो सर्कल का फॉर्मूला आपके पास 2 pi r is equal to 132. So 222/7 into r is equal to 132. ठीक है, आप r की वैल्यू फाइंड आउट करोगे 132, 2 और 22 आपके यहाँ पर डिवाइड में आ जाएंगे और 7 आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप करो इसको कैंसिल, 2 से कैंसिल हुआ 66 आ गया। ठीक है, 22 और 66, 3 7 21, तो यहाँ से आपके पास 21 सेंटीमीटर तो आई है बेटा रेडियस, राइट। अगर रेडियस आ गई, हाइट इज गिवन टू यू 25 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम, और वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला बताया है दैट दिस इज पाई r स्क्वायर h। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो, 22/7, रेडियस आपने फाइंड आउट किया 21 r स्क्वायर एंड हाइट इज 25, और उसके बाद आपने सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, ये सारा मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 346 क्यूब। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, बट आपको आंसर सेंटीमीटर क्यूब्स में नहीं देना, यू हैव टू गिव द आंसर इन लीटर्स। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब से लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको डिवाइड करते हो 1000 से। ठीक है, 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये कन्वर्ट हो गया लीटर्स। So answer will be 3.650 liters. Clear? Okay, now the second question. In your second question, you are given there is a pipe. Inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28. Cylindrical pipe, अंदर का diameter अलग है, बाहर का डायमीटर अलग है, ये है 24 एंड दिस इज 28। हाइट सेम होगी दोनों की? हाँ जी, हाइट सेम होगी। 35, yes ma'am. The length of the pipe is 35 centimeter. ठीक है, and you have to find the mass of the pipe is 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 grams. 1 सेंटीमीटर क्यूब आपका 0.6 ग्राम्स है। ठीक है, तो अगर आपको ये पता लग जाए कि आपके पास इसमें कितने सेंटीमीटर क्यूब्स हैं, उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करके यू विल गेट दैट व्हाट इज द वेट, व्हाट इज द मास ऑफ दिस पाइप। ठीक है, व्हाट इज द मास, हाउ मेनी ग्राम्स दिस पाइप हैज, राइट। अब इसमें आपको सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, दैट मीन्स आपको इस पाइप की वॉल्यूम चाहिए जिसे आप 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी वॉल्यूम, अब कौन सी वॉल्यूम निकालोगे बेटा? मैम आउटर वॉल्यूम। हाँ जी, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम मल्टीप्लाई 0.6। हाँ जी बिल्कुल, आपके पास पाइप तो ये वाला है ना, बीच में तो पाइप ही खाली होता है, राइट। तो आपके पास जो पाइप का मटेरियल है, जिस चीज का वो बना हुआ है, प्लास्टिक का, रबड़ का, ठीक है, वो आपने उसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। सो उसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम इस सिलेंडर की आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस करेंगे, वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, जो आपके पास रबड़ है उसका आपको वॉल्यूम पता चलेगी, एंड देन यू विल मल्टीप्लाई इट विद 0.6 टू गेट द मास ऑफ द पाइप। ठीक है, सो लेट वी फर्स्ट फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द पाइप, दैट इज outer volume minus inner volume। वॉल्यूम फॉर्मूला लगाओ, वैल्यूज पुट करो। आउटर वॉल्यूम हम ले लेते हैं कैपिटल R, H आपकी सेम ही है दोनों की, माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर H। ठीक है, अब इसमें व्हाट इज कैपिटल R कितनी होगी? कैपिटल R बाहर वाली, ये डायमीटर है 14. So it will be 14, and what will be the value of small r? 12. It will be 12. का क्या सिलेबस है? And height is given to you 35.
सेंटीमीटर. So we are going to put, इसमें से पहले आप pi h कॉमन ले लो. You will get r square minus r square. Now we are going to put the values. 22/7. H is 35. Capital R is 13 square minus 12 square. ठीक है. 7 से आपने 35 कैंसिल कर दिया. So 22 into 5. 110. 110. 14 square minus 12 square. या तो आप 14 का स्क्वायर. 196 minus 152. ओके 196 minus 144 कितना आ गया? 26 2 जा 52. Yes. So 110 into 52. Answer will be 5,720 centimeter cube. 5,000 720 centimeter cube. centimeter cube. 5,720 centimeter cube. And 6/10. हाँ जी, इसकी आप फाइंड आउट करेंगे फिर मास, और वो मैं लिख रही हूँ ऊपर. Mass of pipe is, you have to multiply the volume. By 5720 multiplied with 0.6. 0.6 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 572. 572. 6 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे? Oh, 3432. 3432. 3432 और 0 आपकी यहाँ से हट जाएगी. These much grams. चाहे तो किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर लीजिए. कितना आंसर आ जाएगा किलोग्राम्स में? 3.432 kilogram. Yes. Divide by 1000. So 3.432 kilograms. Right? मैम व्हाट इज PT2 सिलेबस? PT2 syllabus आपको भेजा था बेटा? 5. मैम बता दो एक बार. All the chapters done after your half yearly exam. I'll send again. 8, 11. Okay, coming to the third question. A soft drink is available मैम in ऐसे two तो बहुत bags. सारे चैप्टर्स हैं. 5 chapters है बेटा. मैम आपका तो पूरा आना नंबर था. सिस्टम, मैम नंबर सिस्टम, पहले लाइन्स लेट मी एंगल, फिनिश द क्लास. लास्ट वाले 5 मिनट्स में हम बात करते हैं, ठीक है? पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं. A soft drink is available in 2 packs. A tin can with a rectangular base. जिसका rectangular base है, can है, वो आपकी क्या बनेगी? क्या शेप होगी? It will be a cuboid. ठीक है? रियल जूस का डब्बा. ठीक है? जो आपकी क्या नहीं समझ में आया सिमरन? चलिए, at present do this. Okay, चलिए. Your question is a soft drink is available in 2 packs. A tin can with rectangular base of length 5 centimeter and width 4 centimeter. ठीक है, इसकी dimensions आपको ये given and having the height 15 centimeter means you are given the length, breadth and the height of this container. और ये आपको खुद समझना पड़ेगा that this container will be in the shape of. And the second is a plastic cylinder with circular base of diameter 7 centimeter. The cylinder will contain more soft drink. The cylinder will contain more soft drink. Okay, you have calculated. And the height is 10 centimeter. And you have to tell which container has greater capacity and by how much. ये आप खुद करेंगे. You will find out the capacity of this cylindrical container and you will find out the capacity of this cuboid, right? इसकी capacity आप formula लगाएंगे pi r square h. और इसके लिए क्या formula लगाएंगे? Volume के लिए L into B into H. L into B into H. बेटा formula learn करने पड़ेंगे. जब तक formula इसको learn ये नहीं कर होंगे दियो. कुछ समझ में नहीं आने वाला है. ठीक है, इसमें आप ये values put करके इसकी then you have to tell कि किसकी आपकी capacity ज्यादा है और कितनी ज्यादा है. 85. 85 is the answer.
85 is the difference between the volumes. ठीक है? And now the next question. Please mute yourself if there is disturbance from your side. Fourth question is lateral surface area of cylinder is 94.2. Lateral surface area of cylinder. Formula bolo. 2 pi r. 2 pi r. This is given to you 94.2 centimeter square. So 2 pi r h is 94.2 and its height is 5. Height is 5 centimeter. We have to find out the radius of its base and its volume. एक आपने radius find out करनी है और एक find out करनी है इसकी volume. ठीक है? सबसे पहले radius कहाँ से लाएं? Height is given to us. ये इस formula में आप values put करें, you will get the value of radius. 2 pi is 22/7, r as it is और h आपके पास है 5. जितनी भी values आपके पास हैं वो आप इसमें put कर दो और आपके पास जो नहीं है values वो आ जाएंगे. This is 94.2. Formula 2 pi r h 94.2 है. h आपको given है, pi आपको पता है. You will find out the value of r. कैसे करोगे? बाकी सारी टर्म्स 7 को आप उधर शिफ्ट कर दो और इधर से 2 नीचे, 22 भी आपका नीचे और ये 5 भी आ गया आपका नीचे. ठीक है? एंड देन यू विल कैलकुलेट द रेडियस. सारी कैलकुलेशंस करोगे. व्हाट द अच्छा, इसमें बेटा एक चीज और है. यू डू नॉट हैव टू यूज पाई 22/7. इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट यू हैव टू यूज इट 3.14. ठीक है? तो यहाँ पे आपका 3.14 आएगा और ये सीधा से मैम रेडियस 3 हो जाएगा. यहाँ पे 100 आ गया. कितनी आई है? यहाँ 10 आ गया. इसका ये सीधा इससे बेटा 3 से कैंसिल हो जाएगा. अब आप कैलकुलेट कर लो. 5 1 0 से कैंसिल, 5 2s are 2 1s are and the answer is 3 centimeter. ठीक है? तो रेडियस तो आ गई आपके पास 3 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम. पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लगा देंगे पाई आर स्क्वायर एच. 3.14 3 h is 5. आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले लर्न होने चाहिए. ठीक है? और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे व्हाट द आंसर यू आर गोइंग टू गेट? 141.3 सेंटीमीटर. 141.3 सेंटीमीटर क्यूब. अंडरस्टूड? सभी को क्लियर है? अभी बताओ बेटा, अदरवाइज आई एम गोइंग टू इरेज. चलिए, then coming on the next question. It costs rupees 2200 to paint the inner curved surface of a cylindrical vessel. अंदर की तरफ से आपने पेंट किया तो आपको 2200 rupees लगे. And the depth of this vessel is given to you कितनी? 10 meter. Depth means h is 10 meter. और जो cost आ रही है अंदर की रुपीज 2200, अंदर वाली कर्व्ड सरफेस को आपने पेंट किया है. इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज रुपीज 20, टोटल कॉस्ट आपकी जो आई है वो इतनी आई है. एंड द कॉस्ट इज रुपीज 20 पर मीटर स्क्वायर. ठीक है? 20 रुपीज आपके 1 मीटर स्क्वायर के लगते हैं. तो 2200 रुपीज कितने मीटर स्क्वायर के लगे होंगे? 110 मीटर स्क्वायर. आप इसको इससे डिवाइड कर दोगे, आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितने मीटर स्क्वायर एरिया पेंट किया. ठीक है? और जो एरिया पेंट हुआ है वो आपने क्या पेंट किया है? इनर कर्व सरफेस एरिया. इनर कर्व सरफेस एरिया. सो वी आर सेइंग 2200 अपॉन 20 आपने फाइंड आउट किया 110 मीटर स्क्वायर. बट ये जो एरिया पेंट हुआ है ये तो इन्होंने बोला है कि उसका इनर कर्व सरफेस एरिया है जिसको आपने पेंट किया है. सो वी आर गेटिंग इनर कर्व सरफेस एरिया टू बी 110 मीटर स्क्वायर. समझ में आया? आपके पास टोटल कॉस्ट ये है, बट यू आर गिवन की कॉस्ट जो लगती है वो 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग लगती है. आपके टोटल इतने लगे. दैट मीन्स हाउ मेनी मीटर स्क्वायर्स आर पेंटेड. तो आप दोनों को डिवाइड करेंगे. दोनों को डिवाइड करके आपके पास आया 110.
ठीक है, आपने इतना एरिया पेंट किया, बट आपने पेंट क्या किया था, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आपने पेंट किया था, राइट? सो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इज 110 मीटर स्क्वायर एंड देन यू हैव टू, ये आपका फर्स्ट पार्ट था, आपने इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना था. इन द सेकेंड पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द बेस. आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है. आपके पास ये सिलेंडर है, ठीक है, आपके पास ये आ चुका है. इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. अब इसका फॉर्मूला भी लगा दो. व्हाट इज द फॉर्मूला? 2 pi RH. 2 pi RH. Pi r h is 110. Do we have h? Yes, ma'am. H is 10, so we are going to put 10. R we have to find out 2 as it is. और पाई की वैल्यू देख लें क्या पुट करनी है. Nothing is given, तो 22/7. ठीक है, this is equal to 110. Now we have to find out the value of R. करो जल्दी से कैलकुलेट. 7 आपका ऊपर, 1.615. 222 और ये 10 आपका नीचे आ गया. उधर वाली सारी वैल्यूज जो ऊपर थी वो आपने नीचे पहुंचा दी. नीचे वाला 7 ऊपर चला गया. देन यू आर गोइंग टू कैंसिल. 1.75. ठीक है. 1.75. बिल्कुल 7/4. सो दिस इज 1.75. क्या यूनिट? मीटर. Meter. Meters. This is the radius. Now we are on the third part. We have to find out the capacity. Capacity means वॉल्यूम. volume. Volume का formula Pi r square h. Pi r लगा दो. Apply the formula. Volume is equal to pi r square h और निकाल दो आंसर. बता दो जल्दी से कितना आया. 96.25. 96.25. आपने वैल्यूज पुट की हैं पाई आर स्क्वायर एच में. ठीक है, सो योर आंसर इज 96.25 मीटर क्यूब. और अगर आपको आंसर बोला जाता है कि किलो लीटर्स में निकालो तो कितना आएगा? मैम ये किलो लीटर्स में ही बताया किसी ने. हाँ जी बिल्कुल, 96.25 मीटर क्यूब. और मीटर क्यूब ही हमारा किलो लीटर्स होता है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में आपके कितने लीटर्स होते हैं? 1000 लीटर्स होते हैं. और किलो का मीनिंग भी क्या होता है? 1000. सो मीटर क्यूब का 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर्स. ठीक है, सो ये थोड़ी सी कन्वर्जन्स आपने याद रखनी है. नाउ द नेक्स्ट वन, जल्दी से करते हैं. Question number 6. The capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 is 15.4. Capacity means you are given the volume. Liters में given है, so you will convert it into meters. कैसे convert करेंगे meters में? Divide by 1000. Divide by 1000 कर देंगे. So it will be 15.4 divided by 1000. मीटर क्यूब हो जाएगी. ठीक है, और अगर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते तो क्या करना पड़ता? फिर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस. हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट. आपके पास ये सिलेंडर है और ये कह रहे हैं कि इसको बनाने के लिए कितनी मेटल शीट चाहिए होगी. कितनी मेटल शीट चाहिए होगी मतलब हम इसकी सरफेस की बात कर रहे हैं, राइट? और अगर आप सरफेस की बात कर रहे हैं तो कौन सा एरिया निकाले, तो क्या निकालेंगे? एरिया. ठीक है, और एरिया कौन सा निकालोगे? कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस, मतलब Curved surface area. आपने जो एक वर्ड इसमें गिवन है क्वेश्चन में, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल या टैंक जो Total भी है surface आपका. area. Total surface area. Yes, because you are given the capacity of closed cylindrical vessel, मतलब ऊपर से भी बंद है, नीचे से भी बंद है. So we have to find out its total surface area. ठीक है, टोटल सरफेस एरिया आपने फाइंड आउट करना है. वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओगे. पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू दिस वन. ठीक है, और इसमें आप h की जगह 1 पुट कर दोगे. 22/7 यू विल गेट द वैल्यू ऑफ r. और अगर r की वैल्यू आ गई तो आप क्या निकाल सकते हो? इसका मेटल शीट रिक्वायर्ड मींस टोटल सरफेस एरिया. सो दिस क्वेश्चन इज इन योर साइड. इसके बाद आपका बेटा आप अगले 2 क्वेश्चंस खुद ट्राई करेंगे. रेडियस आएगी. रेडियस कितनी आएगी?
7/100. 7/100. 7/100 रेडियस आपकी 7/100 आ जाएगी. So 0.07 we can say. ठीक है. Rest of the questions you have to try yourself. ठीक है.